بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، میں عمران آپ کا میزبان حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نے میری پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ اہل حدیث دیوبندی وہابی کس طرح سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ کہتے کہ مرکز کی مٹی میں مل گئے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا، آپ جا کر کے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اہل حدیث وہابی دیوبندی جو ان کے مولانا ہیں، ان کے جو بڑے بڑے عالم ہیں، وہ لوگ جو اپنی تقریریں کرتے ہیں اس کے اندر کس طرح سے لوگ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ نبی کو ماننا یا جو نبی کو زندہ مانے گا وہ حرام ہے، اور جو نبی کو زندہ مانے گا وہ کافر ہو گیا۔ ان شیطانوں کے ایسے عقیدے کا علامہ فاروق رضوی صاحب کس طریقے سے ان کو قرآن و حدیث سے جواب دیتے ہیں، تو آئیے ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ تو ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا، ویڈیو میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جن کو معلومات نہیں ہے ان کو بھی اس بارے میں معلومات ہو سکے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ کر دیجیے گا۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے استغفر اللہ۔ ہم انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یا آپ زندہ ہیں اور ہر جگہ پر موجود ہیں، یہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں۔ اب آئیے دوسرے صاحب کو سنیں، یہ بھی نبی کو مردہ بنانے کے لیے نیا فتویٰ لا رہے ہیں۔ مطلب چین نہیں آتا ان کو، جب تک ان کا ایمان چونکہ مردہ ہو چکا ہے اس لیے نبی کو مردہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ آئیے سنیے معراج ربانی۔ اللہ کے نبی مر گئے، اللہ کے نبی مر گئے، معاذ اللہ۔ خبر اللہ کے نبی بولو، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق کا یہ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، حضرت عمر کا بیان ہے کہ نبی مر چکے ہیں، عثمان غنی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں، علی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں، فاطمہ عائشہ ازواج مطہرات کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بولو، جو زندہ مانے وہ کافر ہے، جو زندہ مانے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ یہ جماعت بھنڈورا مٹی کی، ہم تو کسی کو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں۔ کفر کے فتوے کی مشین گن تو بریلیوں کے پاس ہے، مگر آج کل یہ توپ داغ رہے ہیں کفر کے، ان کے بعد مشین گن نہیں ہے، توپیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، لہجہ بھی دیکھیے یہ بھی نہیں کہہ پا رہا ہے وہ کہ انتقال فرما ہے، وصال فرما ہے، مر گئے۔ جو نبی کو زندہ نہ مانے وہ کافر ہے۔ کیوں؟ ابو بکر کا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے، عمر کا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے، کسی کے لیے اس نے رضی اللہ عنہ بھی نہیں پڑھی، بے ادبی کا انداز ہے۔ عائشہ کا عقیدہ ہے مر گئے، فاطمہ کا عقیدہ ہے مر گئے۔ جو نبی کو مردہ نہ مانے زندہ مانے کافر۔ سب سے پہلی بات، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا یہ عقیدہ ہے، حضرت عائشہ کا عقیدہ ہے، یہ سارے عقیدے اس کے کان میں آ کے بول گئے یہ لوگ، کوئی حدیث نہیں پیش کیا ایسے، وقت کی اجازت نہیں دے رہا ہے، ورنہ جتنے اس نے نام لیے نا سب کی حدیثیں میں پیش کر سکتا ہوں کہ نبی کتنے زندہ ہیں، مگر چونکہ ابو بکر اور عمر سب سے افضل ہے تمام صحابہ میں، اور شروع میں پہلا نام انہی کے لیے تو انہی کا عقیدہ بتا دیتا ہوں کیا تھا۔ اٹھاؤ خصائص الکبریٰ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 2، وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا وصال ہو رہا تھا، حضرت عمر کو بلایا، کہا عمر میری 2 وصیت ہے، پہلی وصیت میری نماز جنازہ آپ پڑھیں، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میری نماز جنازہ ہو جائے مجھے غسل و کفن وغیرہ سب دے دیا جائے، نماز جنازہ ہو جائے تو آئے عمر میرے جسم کو رسول اللہ کے روضے کے قریب لے جانا، اور سرکار سے کرنا یا رسول اللہ آپ کا رفیق غار، آپ کا ساتھی، آپ کا غلام ابو بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر اجازت ملے تو دفن کرنا، اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفن کرنا۔ گویا ابو بکر بتا رہے ہیں کہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ میرا نبی ایسا زندہ ہے کہ وہ اجازت دینے پر بھی قادر ہے اور گفتگو سننے پر بھی قادر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے وہی کیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، حضرت عمر نے نماز جنازہ پڑھائی، جنازہ اٹھایا جاتا ہے، روضہ رسول کے قریب لایا گیا، حجرہ عائشہ کے دروازے بند ہیں، سرکار حجرہ عائشہ میں حضور کی قبر مبارک تھی، دروازے بند ہیں روضہ اقدس کے، حضرت عمر آگے بڑھے، سلام عرض کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ کا رفیق غار،
आपका जानिसार, आपका साथी, आपका गुलाम अबू बकर आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है। आका इजाजत है, दरवाजा खुद ब खुद खुलता है, आवाज आती है, रफीक को रफीक से मिला दो। सुभान अल्लाह। और यही वसीयत हजरत उमर ने फरमाई, क्या मेरे भी जनाजे को रसूलुल्लाह के रोजे पे ले जाए, मेरी भी ख्वाहिश है कि सरकार के पहलू में दफन किया जाए। वही मामला हुआ, पूछा गया, अबू हुरैरा आते हैं, या रसूलुल्लाह उमर आपका गुलाम आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है, सरकार इजाजत है। फिर आवाज आई, इस रफीक को भी हमसे मिला। सुभान अल्लाह। आज दोनों पहलू रसूल में, इजाजत रसूल से। और नबी ने पहले ही बता दिया था कि होना क्या है। अब यहां मैं एक दलील दे रहा हूं, 2 हदीसें पेश करूंगा, फिर अकीदा देखिए कितना वाज़िह होगा अहले सुन्नत का। अल्हम्दुलिल्लाह एक किताब आले सऊद ने छापी है भी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है, किताब का नाम है मुस्नद आयशा, दारुस्सलाम अहले हदीस का जो मकतब है वहां से छपी है, अलबानी की तखरीज के साथ, जो इनका सबसे बड़ा अल्लामा। अलबानी ने भी इसकी तखरीज में कहीं इस पर जिरा नहीं की, गोया ये हदीस सही है। किताब किसकी है? इमाम जलालुद्दीन सयूती की मुस्नद आयशा, जो हज़रत आयशा की हदीस है उसको उन्होंने जमा कर दिया, छापा अहले हदीस नजदियों ने। उसमें क्या हदीस है ज़रा सुन लीजिए। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिन फरमाती है कि एक मरतबा मैंने सरकार से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आपकी उम्र मुझसे ज़ाहिरन बड़ी है, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, मेरा गुमान है, मुझे लगता है कि आपका विसाल पहले होगा, मेरा इंतकाल बाद में। तो अल्लाह के नबी मैं चाहती हूँ कि आप वसीयत फरमा दे कि आपके पहलू में मुझे दफन किया जाए, ताकि मेरी मौत के बाद फिर कोई इख्तलाफ करने वाला इख्तलाफ न करे। इसलिए आप पहले ही हुक्म फरमा दीजिए कि लोगों मेरी कब्र के बाद अगर कोई दफन होगा तो मेरी बीवी आयशा, आप वसीयत कर दीजिए, तहरीर करवा दीजिए। सरकार मुस्कुराए, फरमाया आयशा तुम वहाँ कैसे दफन हो सकती हो, एक तरफ तो अबू बकर आने वाले हैं, उमर आने वाले हैं, और दूसरी तरफ हजरत ईसा आने वाले हैं। ये नबी का गैब छापा इन्होंने, फिर भी बोलते नबी को गैब नहीं था। और एक सही हदीस, अल्लाह के नबी ने उमर का हाथ पकड़ा, सीधे हाथ में अबू बकर का हाथ पकड़ा, उल्टे हाथ से हजरत उमर का पकड़ा। आप खड़े हुए मजलिस से, फरमाया लोगों देख रहे हो, एक हाथ मेरा अबू बकर के हाथ में है, दूसरा हाथ मेरा उमर के हाथ में। जैसे इस मजलिस से अबू बकर, उमर और मैं उठे हैं, कयामत और कब्र में एक साथ आए। तो नबी ने तो कह दिया था, नारा भी थोड़ा रोक दे, फिर आपको मैं इजाजत दूंगा, भी जितने चाहे नारे लगाए। मैं अब अहम नुक्ते पे आ रहा हूँ। नबी ने कह दिया था साहबा के जिंदगी में, साहबा मौजूद है, रसूल बासाहिर हयात है, हजरत आयशा भी राविया कि पहली फरमाया मेरे पहलू में अबू बकर भी आएंगे, उमर भी आएंगे, हाथ पकड़ के भी बता दिया कब्र से ऐसी उठाए जाएंगे। तो फिर हजरत अबू बकर को इजाजत की क्या जरूरत? सीधा सी इतना कहते लोगों याद है रसूलुल्लाह ने क्या किया था, अमल करना उस पर। ये नहीं कहा कि रसूल ने तो कहा था कब्र से ऐसे उठेंगे, आयशा तुम गवाह हो, तुमसे भी कहा था अबू बकर मेरे पहलू में आएगा, उमर पहलू में आएगा, इजाजत की जरूरत नहीं, दफन कर देना। ये नहीं, अबू बकर जानते थे ऐसे नाबिकार पैदा होने वाले हैं जो मेरे नबी की हयात का इनकार करेंगे। फरमाया इजाजत तो है, मगर एक बार और इजाजत ले लेना, ताकि नबी इजाजत दे तो कयामत तक के लिए गवाह हो जाए कि नबी ने विसाल के बाद कलाम भी किया है, इजाजत भी दिया, गोया नबी जिंदा है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। और हजरत आयशा का अकीदा तो और वाज़ेह हो गया। हजरत आयशा का भी नाम लिया, आयशा का अकीदा मर गया, तेरे बाप ने बोला होगा। हजरत आयशा ने तो नहीं कहा, वो फरमाती रसूलुल्लाह का विसाल हुआ, मैं बेपर्दा आती थी। सूरह ने दारमी की हदीस है, और इमाम दारमी कौन है? इमाम बुखारी के उस्ताद, इमाम मुस्लिम के उस्ताद, इमाम अबू दाऊद के उस्ताद। अगर वो मुशरिक थे तो ये कहाँ बचे थे? मुशरिक से पढ़ने वाला कभी मोमिन हो सकता है? और मुस्लिम में इमाम दारमी की 6 हदीसें आई है, सही मुस्लिम, जिस पर इमाम मुस्लिम ने खुद दावा किया कि इसकी एक हदीस भी मैंने ज़ईफ तक नहीं लाई। इमाम दारमी से 6 हदीसें नकल की। तिरमिज़ी में इमाम दारमी से हदीसें आई, अबू दाऊद में इमाम दारमी से हदीसें आई। इमाम दारमी की सुनान दारमी बहुत मशहूर मकबूल किताब, इमाम बुखारी के उस्ताद, इमाम मुस्लिम के उस्ताद हज़रत आयशा से नकल करते हैं। उम्मुल मोमिन कहती है कि अल्लाह के नबी का विसाल हुआ, मैं बेपर्दा जाती थी इसलिए कि मेरे शौहर है, इनसे पर्दे की क्या जरूरत।
फरमाती अबू बकर का विसाल हुआ तब भी मैं बेपर्दा जाती थी जियारत के लेके। आखिर मेरे वालिद से भी पर्दा नहीं, मगर जैसी उम्र आए मैंने अपने आप को पर्दे में छुपा लिया कि अब उम्र से हया आती है कि गैर महरम है। मुर्दों से भी पर्दे किए जाते हैं। बता रही है कि तुम नबी की हयात का इनकार कर रहे हो, अरे यहाँ तो उम्र हया, इनसे भी पर्दा जरूरी। हज़रत आयशा का ये अकीदा था। आइए 3 हदीसें मैं यहाँ तिलावत कर रहा हूँ, 2 हदीसें सिर्फ, वक्त भी नहीं है, 3 हदीसें पढ़ देता हूँ नबी की हयात के लिए। महराज रब्बानी कहता है कि जो अंबिया को नबी को जिंदा माने वो काफिर है। अब नबी खुद बता रहे हैं अकीदा, अपना नबी खुद अकीदा बता रहे हैं, मेरा क्या? तो माज़अल्लाह इसके फतवे के मुताबिक तो नबी भी काफिर हो गए, और जो नबी को काफिर बा बोले वो खुद मोमिन बचा। आइए हदीस सुने। अन अनस रज़ियल्लाहु ताला। और एक बात बता दूं, इसमें एक हदीस भी मैं ज़ईफ नहीं पेश कर रहा हूँ। किसी की माँ ने चना है तो एक हदीस को भी ज़ईफ साबित कर दूं, एक हदीस भी ज़ईफ नहीं है, तीनों जो मैं भी पेश कर रहा हूँ। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है और नमाज पढ़ते हैं। नमाज नहीं पढ़ते। नमाज पढ़ने के लिए जिस्म भी चाहिए और रूह भी चाहिए। रूहें नमाज नहीं पढ़ती, रूहों को नमाज की हाजत नहीं। नमाज की हाजत जिस्म और रूह दोनों को है। तो सरकार ने कहा अंबिया, सिर्फ ये नहीं कहा मैं, सारे अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है और क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। इस हदीस को किसने लिखा? इमाम बहकी ने हयातुल अंबिया पूरा किताब रिसाला लिखा। अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब का मैंने तर्जुमा किया उर्दू में, अरबी किताब है ये नेट पे डली हुई, आप जाके पढ़े। इसमें कितनी हदीसें उन्होंने लिखी और कितनी हदीसों पे सनद पे बहस है। तो ये जो हदीस है सफ़ा नंबर 3 पर इमाम बहकी के हयातुल अंबिया। इमाम अबू याला ने अल मुस्नद में जिल्द 6 सफ़ा 147 पर इस हदीस को लिखा। इमाम हैसमी ने मजमउज़ ज़वाइद जिल्द 8 सफ़ा 211 पे लिखा। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी शरहुल बुखारी जिल्द 2 सफ़ा 352 पे लिखा। और खुद गैर मुक़ल्लिदों के अल्लामा इब्न तैमिया ने मजमउल फतावा सफ़ा 170 पर लिखा। आइए दूसरी हदीस ये भी अनस इब्न मालिक से है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल। अनस इब्न मालिक कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मररत अला क़ब्र मूसा व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही। सरकार कहते मेराज की शब मैं मूसा की कब्र पर गया, मूसा की कब्र पर पहुंचा तो मैंने मूसा को कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए देखा। और यहाँ सरकार ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, खड़े होकर। मुर्दे खड़े नहीं होते। सरकार ने वाजे कर दिया, कोई ये ना समझना कि मैंने युसल्ली कहा तो सलात से ये मुराद ना ले लेना कि वजीफा पढ़ रहे हो, मिल रहे हो, ये तावील ना कर लेना कि अपने रब की तस्बीह बयान कर रहे होंगे या मुझ पर दरूद पढ़ रहे होंगे, क्योंकि सलात के मायने दरूद भी होते। सरकार ने बताया नहीं, कायमुन खड़े थे। तो बताया खड़े थे मतलब जिंदा थे, मुर्दे खड़े नहीं होते। और एक बड़ी प्यारी बात आ रही है, नुक्ता आ रहा है, मैं बता देता हूँ आपके लिए, बड़ा अकीदे की जान होगा अहले सुन्नत के। सरकार कौन से मेरा सफर की बात बता रहे हैं? मेरा किससे मिलने जा रहे थे रसूलुल्लाह? अल्लाह का दीदार मकसद था ना, मकसद असली दीदार खुदाबंदी। मगर हदीस के अल्फाज है, जिब्रील ने रोक दिया सरकार को एक जगह, किफिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा जिब्रील क्यों रोक दिया? कहा या रसूलल्लाह ये मूसा की कब्र है, ठहर जाए, मूसा से मुलाकात कर लीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे। सरकार कहते हैं मैं इंतज़ार करता रहा कि यहाँ तक कि मूसा ने नमाज का सलाम फेरा। इंतज़ार कर रहे सरकार। जब उन्होंने सलाम फेरा तो मैंने सलाम में पहल किया। सरकार ने पहले सलाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कहा मरहबा नेक साले नबी पर। फिर मुबारकबाद पेश की कि आप मेराज पे जा रहे हैं। सरकार ने गुफ्तगू की, फिर आगे बढ़ी। सवाल ये पैदा होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात बैतुल मुक़द्दस में सारे हम लोग नमाज की कब्र के पास रुकने की जरूरत क्या है? फिर दूसरा ये कि आसमान पे भी मूसा अलैहिस्सलाम से मिलना था, तो यहाँ नहीं भी मिलते तो चल आगे बढ़ जाते।
और इंसान की फितरत होती है, जो मकसद होता है उसके लिए आदमी अपने मकसद की तकमील के लिए बड़े तेजी से जाता है। मिसाल के तौर पर मैं नागपुर से निकला, नासिक आ रहा हूँ तकरीर करने के लिए। अब जब पहुँचना है भाई, तकरीर के लिए पहुँचना जल्दी, मैं ये नहीं करूँगा कि बीच में कई स्टेशन पर रुक जाऊँगा, घूमूंगा फिरूंगा, टाइम पास करूँगा, नहीं। अरे यार जल्दी जाना है नासिक, तो आसपास के सब माहौल से मैं बेनियाद तेजी से चलूंगा, तेज सवारी को पसंद करूंगा। तो दीदारे खुदाबंदी नबी का मसला मकसद असली था, इसलिए सवारी भी बड़ी तेज की गई थी, इसलिए बुराक दी गई थी, महबूब जल्दी आइए कि हम भी आपसे मिलने के मुश्ताक है और आप भी हमारे दीदार के मुश्ताक है। तेज सवारी दी गई, मगर उसके बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर क्यों रोका गया? जिब्रील ने रुकवाया, रुकवा के बताया कि कब्रों की जियारत करना देख लो नबी की सुन्नत है। मैं नबी को रुकवा के बता रहा हूँ कि कब्र पे रुकवाना मेरी सुन्नत, कब्र पर रुकना, जियारत करना नबी की सुन्नत। और नबी ने रुक कर मूसा से कलाम करके कब्र की जियारत करके बताया कि मैं मूसा से अफजल हूँ, मैं ईसा से अफजल हूँ, मैं तमाम नबियों से अफजल हूँ, लिहाजा मैं मूसा से भी अफजल हूँ। तो मैं मूसा से अफजल होकर अदना की कब्र पर आता हूँ, तुम अदना होकर अफजल की कब्र पर क्यों नहीं जाते? और तीसरा क्या मकसद बताया? मेरा असल मकसद तो दीदार खुदाबंदी है, ये मकसद बड़ा अच्छा है। तो आए मेरे उम्मतियों, जब किसी अच्छे मकसद से किसी अच्छे काम के लिए निकलो तो इलाके के सालीन की जियारत कर दिया, ये इसके पीछे फंस। तो बहरहाल ये हदीस भी बता रही है कि अंबिया इकराम अपनी कब्र में जिंदा। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सही के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा 268, सियासित्ता का बड़ा भूत है इनको, तो सियासित्ता का ही हवाला, मुस्लिम की जिल्द 2 सफ़ा 268, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने मुस्नद अहमद में जिल्द 3 सफ़ा 148, इमाम नसाई ने सुनन में, ये भी सियासित्ता की किताब है, जिल्द 1 सफ़ा 242, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अल मुसन्नफ़ में, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ भी इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के शायख है, दादा उस्ताद है, इमाम अहमद इब्न हम्बल के उस्ताद है। जिल्द नंबर 3 सफ़ा 577 पर इब्न हिब्बान ने सही में जिल्द 1 सफ़ा 139 पे नकल किया। अब आइए एक सही हदीस सनद की बड़ी वाज़े कर देती है कि अंबिया जिंदा भी है तो कैसे जिंदा है। अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, अबी दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला हर्रमा अलल अर्दी अन तक़ूलू अजसादल अंबियाए व नबियुल्लाहि हय्युन युरज़ुक़। हज़रत सरकार इरशाद फरमाते, लोगों अंबिया पर अल्लाह ने ज़मीन पर, कब्र की ज़मीन पर अल्लाह ने ये हराम फरमा दिया कि वो अंबिया के जिस्म को खाए। ज़मीन पर अल्लाह ने ये हराम कर दिया कि वो अंबिया के जिस्मों को नुकसान पहुंचाए, उनके जिस्म महफूज है। और फरमाया कि उनके जिस्म महफूज नहीं बल्कि वो जिंदा है। और कैसे जिंदा? अल्लाह की जानिब से उनको रिस्क दिया जाए, रिस्क भी खाते। इस हदीस को इमाम इब्ने माजा ने लिखा, ये भी सियासित्ता की किताब है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 99। इसको मिशकात ने भी नकल किया, जिल्द 1 सफ़ा 121। और हज़रत मुल्ला अली कारी ने मरकात शरह मिशकात जिल्द 3 सफ़ा 242 पर लिखा और फरमाया, इस हदीस की सनद निहायत ही उम्दा और आला है। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, बेशक मेरा नबी जिंदा है। और सरकार उसी तरह अपने कब्र मुबारक में जिंदा है जिस तरीके से आप अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में हयात। अहले सुन्नत का यही अकीदा है। सामने नज़र, उम्मीद है आपने बयान पूरा देखा होगा और आपको कुछ समझ में आ गया होगा इस बयान से इन शैतानों का अकीदा क्या है। कब्रिस्तान में जाने पर सलाम करने का हुक्म है, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। ये सलाम करने के लिए क्यों कहा गया? ये भी कहा गया है कि जब आप सलाम करते हो तो मुर्दा जो उस कब्रिस्तान में दफन है वो लोग आपके सलाम का जवाब भी देते हैं। अब एक कब्रिस्तान में, जो कि आम लोगों का कब्रिस्तान होता है, उसके अंदर नमाजी भी दफन होगा, परहेजगार भी दफन होगा, गुनहगार भी दफन होगा, हर किस्म का मुसलमान मतलब उसमें दफन होगा। अब ऐसा तो नहीं कहा गया कि भाई आप अगर सलाम करोगे तो आपको जो परहेजगार होगा वही जवाब देगा। नहीं, ऐसा नहीं है ना। जितने उसमें होंगे दफन, जितने मुसलमान दफन होंगे सब आपको जवाब देंगे। तो मतलब जब एक गुनहगार बंदा भी आपको सलाम का जवाब दे सकता है तो अल्लाह के नेक बंदे
आपको सलाम का जवाब क्यों नहीं दे सकते? जब गुनहगार बंदे कब्रिस्तान में जो दफन है वो लोग सलाम का जवाब दे सकते हैं, तो फिर नबी हमारे सलाम को कैसे नहीं सुन सकते? और जो सुनता है फिर वो मुर्दा कैसे? ये लोग बहुत बड़े झुट्टों की जमात है। अब ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। ऐसे बयान देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जिन लोग को नहीं पता इन लोग की असलियत, उन लोग को भी इन लोग की असलियत पता चल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।